اسلام میں ایک دائرہ کھینچتی ہے. جتنی پابندیاں اللہ نے لگائی ہیں وہ پابندیاں ہیں. اپنی طرف سے کچھ پابندی لگانے کی کوشش کرو گے وہ بدعت کے زمرے میں آئے گی. اس سے ثواب کے بجائے الٹا گناہ ملے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ جلدی سے بات کو 5 منٹ میں سمیٹتا ہوں میں. وہ پابندیاں کیا ہیں جو اللہ نے لگائی ہیں, اور وہ پابندیاں کیا ہیں جو ہم اپنے آپ پر خود بخود بلا وجہ تھوپ رہے ہوتے ہیں اور ثواب بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں. اللہ نے ہم پہ پابندی لگائی زنا مت کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا پابندی لگائی؟ زنا. دیکھو ڈاکٹر تو کہے گا, ڈاکٹر نا, میں جو دیسی لبرل ڈاکٹروں کی جو بات ادھوری رہ گئی تھی وہ یہی تھی. اصل ہمارے یہاں کچھ سائیکیٹرسٹ یہ کر رہے ہیں, جب کسی نوجوان کی شادی نہیں ہوتی وہ ٹینشن میں ہوتا ہے, صحت بھی خراب ہوتی ہے, وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا, ڈاکٹر اس کو الٹے سیدھے کاموں کا مشورہ دے گا اس طرح سے اپنی شہوت کو پورا کرنا. تو کہتے ہیں ایکچولی تم نے یہ نہیں کیا تو مینٹلی تم سب ہو جاؤ گے, صحت خراب ہوگی. تو اس کی پورا فوکس کس کو ہوتا ہے؟ صحت کو ہوتا ہے. میں ان ڈاکٹروں سے کہتا ہوں لیکن صحت کے علاوہ بھی دنیا میں مسائل ہیں. ایک ملحد میرے ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ میں اسلام کو نہیں مانتا کیونکہ بعض چیزیں اسلام نے ایسی کہی ہیں جو بالکل فضول سے. میں نے کہا کیا کہتے ہیں؟ اسلام کہہ رہے بیٹھ کے پانی پیو. میں نے کہا فرض نہیں ہے بیٹھ کے پانی, کھڑے ہو کے بھی پی سکتے ہیں. بہتر کیا ہے؟ بیٹھ کے پینا. میڈیکلی تو کھڑے ہو کر پانی پیو, بیٹھ کے پانی پیو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے کہا آپ یہ کپڑے پہن کے بیٹھے ہوئے ہو, میڈیکلی اگر آپ کپڑے کے بغیر بھی بیٹھتے, کپڑے پہن کے بیٹھتے, کوئی فرق؟ میں نے کہا آپ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے میڈیکل سائنس کو اپنی کھوپڑی کے اندر, آپ سمجھ رہے ہو دنیا کے ہر مسئلہ میڈیکل سائنس ہی ہے. بھائی ڈاکٹر کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ چڈی پہن کے اس کی کلینک میں آ رہے ہو یا پراپر کپڑوں میں اس کی کلینک ہو. میڈیکلی کچھ نہیں ہوتا اس سے. اس کا تعلق ہے تہذیب سے. رشتہ لینے جب چڈی پہن کے جاؤ گے بھگا دے گا وہ. بولے میں نے کسی مہذب آدمی کو اپنی بیٹی دینی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو مذہب کا ٹاپک میڈیکل سائنس نہیں ہے. مذہب کا ٹاپک کیا ہے؟ تہذیب. ہمارے نبی نے بیٹھ کے کھانے پینے کا اس لیے حکم دیا, اس کا تعلق کس سے ہے؟ تہذیب سے. کھڑے ہو کے کھانا پینا اچھا نہیں, جائز وہ بھی ہے, ضرورت کے وقت کھا سکتے ہیں, پی سکتے ہیں, لیکن سنت کے ساتھ کو قرار دیا بیٹھ کے کھانا, کیونکہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ تہذیب سے ہے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ مذہب آپ کو مہذب بناتا ہے. وہ تمام چیزیں جن سے تہذیب کا تعلق ہے, مذہب ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے. یہ کرو, یہ مت کرو. اب زنا کرنا سائنسدان برا نہیں کہیں گے, اس کو ڈاکٹر برا نہیں, بلکہ ہو سکتا ہے ڈاکٹر ترغیب دے کہ 40 سال کا ہو گیا, کچھ تو کر میرے بھائی تاکہ تیرا دماغ سیٹ ہو. مذہب کیا کہے گا؟ لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب مت پھٹکو. پھر آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے, ڈاکٹر صاحب, مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ, اور مجھ سے کوئی نکاح کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہی ہے, تو میں کیا کروں؟ ڈاکٹر کہے گا صحت برباد ہو جائے گی, یہ کر لو, وہ کر لو, الٹے الٹے کاموں کا مشورہ دے گا. لیکن مذہب کیا کہے گا؟ 3 آدمیوں کی مدد اللہ نے اپنے ذمہ لازم دی ہے. 3 آدمی. مذہب کہے گا صحت کتنی بھی خراب ہو رہی ہے, زنا کے قریب مت جاؤ. پھر نکاح کیسے ہوگا؟ مذہب انوالو ہوتا ہے بیچ میں. وہ کیا کہتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص زنا سے بچنے کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہے اللہ نے اس کی مدد اپنے ذمے لے لی ہے. یہ ڈاکٹر نہیں بتائے گا, یہ کون بتائے گا؟ مذہب بتائے گا. اگر تجھے نہیں مل رہا تو تیرے اندر کوئی مینوفیکچرنگ کوئی فالٹ ہے, کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے. وہ فالٹ کیا ہے کہ دکان پکوڑوں کی اور باتیں کرو. تو رہتا اورنگی ٹاؤن میں پٹیل پاڑے میں ہے اور چاہتا کیا ہے؟ تجھے ٹورنٹو کے پوش ایریا کی کوئی لڑکی ملے جو تجھے امیگریشن بھی یہاں کی دلائے. کھوپڑی آؤٹ ہوئی, میرے پاس آتے ہیں نا لونڈے پاڑے بھی, کہتا بھائی تو کر نہیں رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تیری پکوڑوں کی دکان ہے اور تجھے چاہیے کروڑوں والی. بھائی ضرور دنیا مسافر خانہ ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو, من لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم. مولوی صاحب صحیح کہہ رہا ہوں؟ قرآن کہہ رہا ہے جو آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتا کسی کی باندھی سے نکاح کر لے. ذالک لمن خشی العنۃ منکم, یہ اس کے لیے جو زنا سے بچنا چاہتا ہے. تو اللہ تو پہلے زمانے میں باندیاں ہوا کرتی تھی جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی سوسائٹی میں, غلام ہیں. آپ اس سے شادی کرو گے, خدمت وہ اپنے مولا کی کرے گی, رہے گی وہاں. آپ کا صرف یہ ہوگا کہ زنا سے بچ جاؤ گے آپ. تو قرآن نے کہا آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتے. سوسائٹی میں جن کو بہت کم سمجھا جاتا ہے, یعنی اگر آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتے, عزت دار عورت سے نکاح نہیں کر سکتے, زنا پھر بھی مت کرو. ان عورتوں سے نکاح کر لو جو سوسائٹی میں کم تر سمجھی جاتی ہے. تو آج چھڑے چھاٹ کو دیکھو, اس کو بولو بھائی اپنی پھوپھی ذات سے کر لے, خالہ ذات سے کر لے, وہ تیرے تایا رکشا چلا رہے ہیں, کوئی بات نہیں, ان کی بیٹی سے کر لے. نا معیار اتنا اونچا ہے, بیوہ سے کر لے, طلاق یافتہ سے کر لے. نا معیار کیا ہے؟ جیسے ہمارے یہاں چرسی ہوتے ہیں نا, ایک ہیروئن کسی نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے تم لوگ ہیروئن پی کے اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہو کہ ہم چاند پہ ہیں. اس نے کبھی کہاں بیٹھا ہوا, وہیں سے بیٹھ کے تو یہ پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں آپ. وہ تو ہیروئن پی کے میرے بھائی خود کو یہ سمجھ بیٹھا کہ میں چاند پہ ہوں. ہم نے ہر لونڈا لپاڑا یہ سمجھ رہے کہ میں بہت اہم ہوں, میرا اسٹیٹس یہ ہے, میری بیگم کا اسٹیٹس بھی یہ ہونا چاہیے. نا میرے بھائی ذرا بھی چلانا سکتا. جب قورمہ کھانے کو نہیں ہوتا, دال روٹی سے پیٹ بھرا جاتا ہے. ڈاکٹر کبھی یہ کہے گا تمہیں قورمہ نہیں مل رہا تو کسی کی مرغی چراؤ.
वहाँ तो डॉक्टर नहीं कहता क्योंकि हुकूक लिबास से ताल्लुक़ है। तो मेरे भाई, अल्लाह की नज़र में जैसे मुर्गी चुराना हराम है, विदाउट मैरिज किसी लड़की से किसी औरत से फिजिकल रिलेशन भी क्या है अपनी स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए हराम है। बस ख़वातीन के फ़ोन आते हैं, बेवा हो गई, तलाक हो गई, अब स्ट्रेस में है, टेंशन में है, कहीं डॉक्टर ने बोला किसी को बॉयफ्रेंड बना लो, मैंने कहा ना, डॉक्टर का टॉपिक मेडिकल साइंस है, वो आपकी आखिरत तबाह कर देगा, उसको इससे कोई गरज नहीं है। ना नहीं करो, टेंशन से मर जाओ कोई बात नहीं है, सबने मरना है। जिनको टेंशन नहीं होती क्या वो मरते नहीं है? वो भी तो मरते हैं भाई, बीवियां भी तो मरती है, सर शौहर थोड़ी मरते हैं, बीवियां भी तो मरती है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि वो टेंशन दे के, मतलब ये कि सब भी मरना है, एक सबने दुनिया से गलत बातें मुंह से निकल जाती हैं, सीधा करना बड़ा मुश्किल होता है। मैं फिर एक्सक्यूज करता रहता हूँ, एकदम गलती से होता है, इंसान खता का पुतला है ना। तो कुछ दिन पहले मैं बयान कर रहा था कि इस्लाम में हराम चीज़ें मना है ना, उसमें खून भी है, किसी को खून पीने की इजाज़त नहीं है सिवाय बीवी को कि वो शौहर का। मैंने इतना सॉरी किया, गलत खैर आपको इतना सॉरी किया था, फिर दोबारा रिपीट क्यों किया इस मिसाल? तो मैं तो सिर्फ मिसाल के तौर पर रिपीट किया। खैर, तो मेरे भाई, अल्लाह ताला ने अल्लाह का जो चाहता है ना हमसे कि मैंने सब कुछ किया, मैंने बनाया, मैंने तुम्हें माँ बाप की नेमत दी। आज इमाम साहब ने जो आयतें पढ़ी हैं उनमें तो मैंने सिर्फ एक आयत पढ़ी है, वमिन आयातिही अन खलक़कुम मिन अज़वाज, अन खलक़ लकुम मिन क्या मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। आपको तो वो लगेगा ये मौलवी साहब क्या टॉपिक लेके बैठ गए, खुदा की कसम। अल्लाह जिस नेमत को नेमत के तौर पे बयान कर रहा हो, अल्लाह कहते हैं उसने तुम्हारी जिन्स के जोड़े पैदा किए, तुम्हारे मर्द के लिए औरत, औरत के लिए मर्द, लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम्हें सुकून मिले। आप कह सकते हो मुफ्ती साहब आप तो शादियों पे लतीफ़े सुनाते हो, टेंशन टेंशन, भाई ये लतीफ़े हैं, हकीकत ये कि इसके बगैर गुजारा नहीं है। छड़े छाड़ जो है ना वो ज़्यादा अजाब में होते हैं। शादीशुदा को टेंशन होती ही इसलिए कि उसको बीवी से मोहब्बत मिलती है और वो लड़ती है मोहब्बत में। कम वक्तों जो कंवारे हैं उनको तो कहीं जमशेद के अलावा किसी से मोहब्बत क्या करना है उस जमशेद का। बीवी को जब आपसे मोहब्बत होगी वो अलग चीज है। जमशेद आके बोले आई लव यू, उधर जाके बैठ और की बदबू मुझे बस सुना। वो तो इसलिए लतीफे बनते हैं कि जब एक साथ रहते हैं तो कदर नहीं होती ना। क्या ख्याल है? तो एक साथ रहते हैं इसलिए कदर नहीं होती। जुदा हो जाए तो देखो दोनों कैसे डिप्रेशन में जाते हैं, कैसे टेंशन में जाते हैं। अगर मेरे भाई बीवी के बगैर गुजारा होता ना तो आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अम्मा हुआ के बगैर सर्वाइव। क्या ख्याल? तो जन्नत टोरंटो से करोड़ों गुना ज्यादा ऐश की जगह थी। वहां भी आदम अलैहिस्सलाम का अम्मा हुआ के बगैर गुजारा नहीं हुआ। टोरंटो में कमाने आए हो, एक्चुअली मैं अपनी स्टेबल जब हो जाऊंगा मैं और मैं एक्चुअली कर करा के तुम शादी को डिले कर रहे हो। कम वक्त तो बहुत मादरत मैं तो मुँह से उल्टे उल्टे अल्फाज निकालना शुरू कर देता हूँ। मेरे भाई एक उम्र है जो मोहब्बत की उम्र होती है, डॉक्टर साहब बताएंगे, जिसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका बहुत पीक पे होता है, उसमें बीवी से मोहब्बत होती है। एक टाइम होता है जब आप स्टेबल हो जाते हैं, तो इकोनॉमिकली तो आप स्टेबल हो जाते हैं। आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है, जो मर्दाना हार्मोन्स हैं, जो आपसे सिर्फ बीवी से टूट के मोहब्बत करवा रहे थे, तो हार्मोन मार्केट से शादी। समझ आ रही बात? फिर आप ये सोच के मोहब्बत करते हैं कि चूंकि ये मेरी बीवी है इसलिए मुझे इससे मोहब्बत करना मेरा इस्लामी फरीजा है, हमारे कल्चर का हिस्सा है। जिस मोहब्बत को एक्सप्लेन करना पड़े वो मोहब्बत है। सोच सोच के मोहब्बत करनी पड़े तो मोहब्बत सोच सोच की थोड़ी होती। मोहब्बत तो पागल आया आदमी, बताने थोड़ी पड़े उसको। तो ये मेरे भाई कम उम्री की शादियों में होता है ऐसा। समझ आ रही है बात? तो उस वक्त ये जो कुरान ने कहा ना अल्लाह ने तुम्हारे लिए जोड़े पैदा किए, तो ये 18 साल में अल्लाह पैदा कर चुका होता है हमारे लिए। 50 साल 40 साल तो आप कमाओ, किसने मना किया है? तभी तो कुरान ने क्या कहा है, ये युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़लिही। ये भी डॉक्टर का टॉपिक है। डॉक्टर कहेगा, या एक जो मईशत के माहिरीन है ना, मईशत के माहिरीन, उनके पास जब आप जाएंगे, जो भी अकाउंटेंट होते हैं, जिसने चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, सीए किया हुआ है, जो कैलकुलेशन बड़ी ज़बरदस्त जानता है, जब आप उसके पास जाओगे एक्चुअली मेरी तनख्वाह इतनी है, मैं फॉर एग्जाम्पल $2000 कमा लेता हूँ, तो अगर मैं शादी करूँ तो सर्वाइव कर पाऊंगा, वो कैलकुलेटर लेगा, क्योंकि उसका टॉपिक ही नहीं है ना। उसका टॉपिक कैलकुलेशन, वो कहेगा 2000 में तो इतने पराठे खाता है, इतने अंडे खाता है, इतने फिश निकाल के, इतने जिम का भी है और गैस बिजली का भी फिश पेश हो गया, एक आध बीवी का $1 बचेगा इसमें, और अगर एक आध बच्चा पैदा हो गया तो तेरा प्रोग्राम बढ़ेगा, तेरा प्रोग्राम बढ़ेगा। भाई जो अकाउंटेंट है वो तो यही बताएगा, जो इकोनॉमिक्स के माहिर है वो तो यही। यहाँ भी कुरान बीच में आता है। अल्लाह को पता था ये कम वक्त पढ़े लिखे लोग ज़्यादा बेड़ा गर्क करेंगे नौजवानों का। ये जो है ना, जो काउंटिंग की जॉब कर रहे हैं या जो कैलकुलेटर के बूजिद हैं, वो बेड़ा गर्क करेंगे किसका? नौजवानों का। तो अल्लाह ने कुरान में खुद कह दिया, अनकिहुल अय्यामा मिनकुम, तुम बेनिकाहों का निकाह करा दिया करो, इन यकूनु फुकरा,
अगर कैलकुलेशन की हिसाब किताब सही नहीं बैठ रहा होगा, कोई बात नहीं, टेंशन न लेना। युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, रिज़्क़ के ख़ज़ाने किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ। मेरे ऑर्डर पे निकाह कर रहे हो तो जिससे तुम शादी कर रहे हो वो तुम्हारी बीवी बाद में है, मेरी बंदी पहले है। जब बच्चा पैदा होता है माँ खुद अपनी छातियों में दूध पैदा करती है, ये खुदा पैदा करता है? जिम्मेदारी तो माँ की थी, तुमने पैदा किया तो भुगतो। अल्लाह कहता है तुमने पैदा किया, तुम्हारी औलाद बाद में है, मेरी मखलूक पहले है। तू चाहेगी या नहीं चाहेगी तेरी छातियों में दूध आएगा, और नहीं पिलाएगी तो इतना दर्द होगा तो मजबूर हो जाएगी इसको पिलाने पर। मेरे भाई ये आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बताएंगे ये बातें, ये उनका टॉपिक नहीं है। पैगंबरों ने हिदायत की है और मुसलमान खुशकिस्मत है जिसके पास पैगंबरों की हिदायत है, गैर मुस्लिमों के पास नहीं है, इसलिए गुमराह हो रहे हैं। नस्लें भी रोक दी इन्होंने, एक बच्चा, आधा बच्चा, पौना बच्चा, ये तो इनके बच्चे चल रहे हैं। पौना कैसे? चार फैमिलियां मिलकर एक ही बच्चा होगा, उनमें तो डिवाइड करो तो पौना आ रहा होगा। हमारे यहाँ 4 फैमिलियां होंगी, 20 बच्चे होंगे, कजन, भतीजे, ताए, कितना चल रहा होता है। याद है आप लोग भूल गए अपने कजनों में कैसे खेला करते थे बचपन में? कजन आ रहे हैं, पुप्पी के बच्चे आ रहे हैं, खाला के बेटे आ रहे हैं, मामू के बेटे बेटी आ रही है, कैसा हम लोग। अब तो वो नस्लें आपस में क्या हो रही है? दादा का एक आध बच्चा था तो फुप्पो ही नहीं है कोई। जब फुप्पो ही मार्केट में नहीं होगी तो फुप्पो के बच्चे कहां से होंगे? क्योंकि दादा के एक बेटा पैदा हुआ, उसके बाद दादा, और वो दादा भी बाद में, यानी मरहूम दादा। शादी इतनी देर से की होती है कि पोतों ने दादा को अपनी जिंदगी में देखा ही नहीं होता। पहले बचपन में हम जनाजे देखते थे, दादाओं के जनाजे आते थे, दादा फूफा के आते थे। इतनी देर से शादियां हो रही है कि दादा बनने से पहले मार्केट से। क्यों अपनी जानों पे जुल्म कर रहे हो, अपने खानदानों को अपने हाथों से? मजहब तुम्हें जो गाइड कर रहा है तो छोड़ दो ना, फिर टोपी भी क्यों पहनते हो मेरे भाई? छोड़ दो रमजान, शव्वाल, ज़ीक़ादा और मुहर्रम। अंग्रेज के हैं, अंग्रेज मानते हैं रमजान को, उसके रमजान और शव्वाल क्या है? अरे हिंदू के लिए रमजान और शव्वाल में कोई फर्क है? बोलते क्यों नहीं हो? कोई फर्क नहीं। हलाल और हराम में कोई फर्क है? गैर मुस्लिम खाना खाने से पहले देखेगा प्रोटीन है या नहीं है, और खुश जायका है या नहीं, बस। चाइना वाला कहते हैं कुत्ते में भी वही प्रोटीन है जो गाय में है, और मजा उनको बास चाइनीज को कुत्तों में गाय से ज्यादा आ रहा है, कुत्ता खा लेंगे। हम खा सकते हैं कुत्ता? कुत्ता हमें खाता है कराची में। कराची में जो बेतहाशा कुत्ते हैं, मुझे कुत्ता ही नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर। जो कुत्ता होगा वो इतना खूबसूरत सा कुत्ता होगा, पता ही नहीं चल रहा होता इसमें आदमी कौन है कुत्ता कौन है। उसको नहलाया धुलाया, गले में लॉकेट और ऐसा खूबसूरत कुत्ते घूम रहे होते हैं। आप इंडिया और पाकिस्तान में जाओ, वहां कुत्तों के वाकई वहां कुत्तों जैसी की है जो सलूक हमने उनके साथ किया, लेकिन कुत्तों ने भी हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। आप जाके देखो, आए दिन लोग बाइकें टकरा रही हैं कुत्तों के, इधर गिर गए उधर गिर गए। तो खैर, लेकिन बहरहाल हम कुत्ता खा नहीं सकते। तो मेरे भाई गैर मुस्लिमों में तो क्या है, गर्लफ्रेंड और बीवी, वो कहते हैं गर्लफ्रेंड रख लो, और अगर आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इसको वाइफ बना दो तो कोई टेंशन नहीं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वाइफ भी है, गर्लफ्रेंड भी है, उनके लिए मसले नहीं है। जुम्मे की नमाज है उनके लिए मसला, फजर की नमाज, जोहर की नमाज, बगले साहब, वो कहते हैं कल्चर है, आपको दिल कर रहा है कर लो, नहीं तो जुए मार स्प्रे डाल दो तो भी क्या है। जरासीम से बचना जरूर, डॉक्टरों ने कहा है ना, तो स्प्रे कर देते हैं बगले से, खत्म हो गया। अब अमेज़न का जंगल हो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुस्ले जनाबत है गैर मुस्लिमों में। भाई मियाँ बीवी मिले, गुस्ल करो, कह रहे कोई जरासीम थोड़ी हमारे लगे, अगर लगे हुए भी है तो एक स्प्रे मिलता है, डेटॉल से हाथ धो लो, खत्म। मेरे भाई मैं और आप तो गुस्ले जनाबत के बगैर नमाज नहीं होती हमारी, समझ रहे हो? नमाज नहीं होती हमारी। इसी तरह रिश्तेदारी जोड़ना ये उनका हेडिक नहीं है। उनके यहाँ चच्चा, मामू, खाला, फुफी, ताया, ये लफ्ज उनकी डिक्शनरी से गायब। अंकल, बस वही चच्चा को भी कहोगे, वही ताया को भी कहोगे, वही जमशेद को भी कहोगे, जिसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। भाई इस्लाम क्या कहता है? अरबी में भी उर्दू में भी आम, आपके अब्बू के भाई को आम कहा है, जो आपके अब्बा का भाई है उसको अलग से लफ्ज दिया गया है। वो जमशेद की तरह, जमशेद से मेरी बात जो भी आम पर्सन है उनकी तरह नहीं है। हो सकता है किसी के चच्चा का नाम ही जमशेद हो। तो मेरे भाई अंग्रेजों की नजर में जो है, मुस्लिम की नजर में इन चीजों की कोई नहीं। चच्चा, खाला, फुफी, ताया, बल्कि टीचर की इज्जत भी खत्म हो गई है अपनी। हमारे यहाँ जो यहाँ से पढ़ के जाते हैं ना, वहाँ बता रहे होते हैं वो टीचर की कोई रिस्पेक्ट नहीं, वो भी जमशेद की तरह का एक इंसान है, पढ़ा दिया, पढ़ने पढ़ो तो फीस ले रहा है ना, तनख्वाह ले रहा है फिर में। इस्लाम में टीचर का क्या है? एहतराम है। तो या तो मेरे भाई पूरे उधर हो, समझ रहे हो? और अगर उधर पूरे नहीं होते, आपका दिल नहीं मानता, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इस्लाम बरहक मजहब है, तो जब बरहक तो पूरे हो ना इधर, क्या क्या है? तो इस्लाम मेरे भाई, आपको जब तक जानवर पे अल्लाह का नाम ना लिया गया हो और ज़बह ना किया गया हो, उसके गोश्त खाने की आपको इजाज़त इस्लाम नहीं दे।
यहाँ के बहुत से लोग आवारा हो जाते हैं, यार एक्चुअली बड़ी टेंशन है यार, ना ये टेंशन लेनी पड़ेगी, समझ रहे हो। इस्लाम आपको इजाज़त नहीं देता कि जमशेद में और आपके चचा में कोई फ़र्क नहीं है। कुरान ने इन रिश्तों को ऐसा खूबसूरत अंदाज में बयान किया, लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तअकुलू मिन बुयूतिकुम, अल्लाह कहते हैं कोई हर्ज नहीं है बेतकल्लुफ़ हो के अपने घरों में जाया करो, औ बुयूति आबाइकुम, अपने अब्बा के घर में जाया करो, दादा के घरों में जाया करो, औ बुयूति उम्महातिकुम, अपनी माँ और नानी के घरों में जाया करो। हुआ ये था कि अल्लाह ताला ने जब हुक्म दिया ना कि एक दूसरे का माल नाहक तरीके से मत खाओ, सख्त हराम है, तो सहाबा डर गए कि हम तो अपनी खाला फूफी के घर में जाते हैं, कभी खा लेते हैं वहाँ से। मुझे याद है मैं अपनी फुप्पो के घर जाके सबसे पहले उसकी दूध की मोटी मलाई निकाल के खा जाता था। हम जाते थे किचन में, तो ढक्कन हटाया फुप्पो के घर में, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, तो हम ढक्कन हटाया तो दूध पे इतनी मोटी मलाई जमी, जो हमने उतारी ऐसे निकाली और चम्मच से खा। अब सहाबा कराम को जब ये बताया गया कि किसी का 1 रुपये भी नाहक क्या है हराम, तो वो भी कहेंगे हम अपने रिश्तेदारों के जब जाते हैं तो वहाँ तो बेतकल्लुफ़ होकर खा लेते हैं, तो कोई ये हराम तो नहीं है, गुनाह तो नहीं है। तो अल्लाह ये भी तो कह सकते थे कि तुम पे कोई गुनाह नहीं है, तुम अपने रिश्तेदारों के घर खा लिया करो, इससे रिश्तेदारों को कोई तकलीफ थोड़ी होती है, रिश्तेदार तो खुश होते हैं, खा लिया करो। इतना कहना काफ़ी था कि नहीं था? लेकिन अल्लाह को पता था एक दौर ऐसा आएगा कि चचा खाला तुमको ताया रिश्ते मार्केट से क्या उठाएंगे, इसलिए अल्लाह ने रिश्तेदारों के नाम लेके बताए। फरमाया लैसा, इतना मज़ा आता है सूरह नूर की आयतों को पढ़ने में, लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तअकुलू मिन बुयूतिकुम, अपने घर में जैसे जाके खा लेते हो कोई हर्ज नहीं है, औ बुयूति आबाइकुम, अपने अब्बा दादा के घरों में भी जाके खा लिया करो, तुम्हारे चूंकि अब्बा हैं और तुम्हारे क्या है वो दादा है, नाना भी इसी में आ गया। औ बुयूति उम्महातिकुम, अपनी माँ, उम्महात मतलब तो जो तुम्हारी माँ यानी नानी भी दादी भी इसी में आ गई, उनके घर में जाके खा लिया करो, इसमें कोई हरज बोलो नहीं है। नानियों दादियों का अल्लाह ने अलग तस्करा किया। औ बुयूति अमामिकुम, अपने चचाओं और तायाओं के घर में भी जाके खा लिया करो, क्योंकि वो तुम्हारे अब्बा के क्या हैं, भाई हैं, उनसे तो तुम बहुत क्लोज हो, समझ रहे हो, हमारे करीबी रिश्ते हैं, खा लिया करो, कोई हरज नहीं है। औ बुयूति अम्मातिकुम, अपनी फुफियों के घर में जाके भी खा लिया करो, कोई हरज नहीं है। औ बुयूति अखवालिकुम, अपने मामुओं के घर भी कभी कभार जाके खा लिया करो, तो इसमें कोई अब ऐसा ना हो आप लोग जा जाके खाना शुरू कर दें और सबका बेड़ा गर्क कर दें। चाचा के घर में घुस रहे हैं, फिर इससे चीज़ें निकाल के खा रहे हैं, कह रहे हैं मुफ्ती साहब ने आयत सुनाई है, चचा के घर जाके खा लिया करो, इसमें कोई हरज है। इस आयत का एक सियाक़ व सवाक़ है ना, वो डर गए थे साहब इकराम, खौफज़दा हो गए थे, तो अल्लाह ने इनसे तो बेतकल्लुफ़ी होती है, तो बेतकल्लुफ़ी के लिए एक एक रिश्ते को अलग करके बयान किया जा रहा है, उनकी वैल्यू और अहमियत को बताने के लिए कि मुसलमानों में ये रिश्ते होते हैं। सबको अंकल नहीं कहा जाता, चचा अलग होता है, फुप्पी अलग होती है, मामू अलग होते हैं, खालाएं औ बुयूति खालातिकुम, कोई हरज नहीं अपनी खालाओं के घर जाके खा लिया करो। आखिर में औ बुयूति सदीक़िकुम, अपने दोस्त के घर, दोस्त को सबसे एंड में रखा है अल्लाह ने, बेतकल्लुफ़ दोस्त होते हैं उनके घर में जाके नहीं खा लिया सबसे एंड में। तो इससे पता चलता है इस्लाम में ये रिश्ते हैं, और रिश्ते गर्लफ्रेंड से बनते हैं या बीवी से बनते हैं। मेरे भाई फिर इस्लाम में बेगम की भी वैल्यू होगी कि नहीं, और बेगम बनाने से बनती है, ऑटोमेटिकली कोई किसी की बीवी होती तो हम वाली कितनी सारी हो जाती, क्या ख्याल है, बनाने से बनती। तो जितना देर से बनाओगे अपनी औलाद को इन रिश्तों से उतना महरूम रखो, जितना जल्दी बनाओगे अपनी औलाद को इन रिश्तों की नेमतों से मुज़य्यन करोगे, उनको खुशियाँ दोगे। तो ये तो बड़ा लंबा टॉपिक है, बस मैं बात को समेट के ख़त्म करता हूँ। तो अल्लाह ज़िना से खुश नहीं होता, निकाह से खुश होता है। मैं बार बार एक वाक़या बयान करता हूँ, ज़िना इतनी बुरी चीज़ है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मिस्र में, उनको अज़ीज़ मिस्र की बीवी ने बरगलाया और धमकी दी कि अगर मेरी हाजत पूरी नहीं की तो जेल भेज दूँगी। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब्बि सिज्नु अहब्बु इलैया, ऐ अल्लाह ज़िना से मुझे जेल ज़्यादा महबूब है। कई साल जेल में गुजार लिए, कई साल कैद में गुजार लिए ज़िना से बचने के लिए। और दूसरे पैगंबर मूसा कलीमुल्लाह, जहाँ उनका निकाह होना था, उनकी ज़ौजा के वालिद ने कहा इन्नी उरीदु अन उनकी हका इहदा बनतैया हातैन, मेरी 2 बेटियां हैं, इनमें से एक से आपका निकाह करना चाहता हूँ, शर्त यह है कि आपने 8 या 10 साल बकरियां चरानी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़ालिका बैनी व बैनक, कबूल है, 10 साल बकरियां चराऊंगा, लेकिन अपनी बेटी से मेरा निकाह कर दें। 10 साल बकरियां चराना भी एक तरह से कैद ही है। एक पैगंबर निकाह पे इतनी हिर्स कि निकाह का ऑप्शन जाया नहीं किया, 2 के 10 साल बकरियां चरानी पड़े, और एक ने ज़िना का ऑप्शन कबूल नहीं किया, 2 के 10 साल जेल की कैदोबंद में गुजारने पड़े। इतना फर्क है। डॉक्टरों की नजर में ये फर्क बोलो नहीं, साइंसदानों की नजर में ये फर्क नहीं, अकाउंटेंट की नजर में ये फर्क नहीं, गैर मुस्लिम की नजर में ये फर्क नहीं। जिसने मुझे और आपको पैदा किया है ना, वो पैगंबरों के वाक़यात सुना के बताता है कि मेरी नजर में ज़िना में और निकाह में थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा फर्क है। ज़िना नहीं करने की चीज है और निकाह फौरन करने की चीज है।
ہم لوگ آدھی بات تو لے رہے ہیں کہ زنا نہیں کرنے کے لیے تو مانتے ہیں، لیکن نکاح فوراً کرنے کے لیے نہیں مانتے، بیچ میں لٹکے ڈپریشن، اسٹریس، پاگل پھر سائیکٹرسٹ کے پاس جا رہے ہیں، کیا کروں؟ پھر وہ کہہ رہے میں کر رہا ہوں، وہ بھی نہیں کروں. تو پورا دین لو بھائی میرے، پورا دین میں جہاں زنا نہیں ہے وہاں جلدی نکاح بھی تو ہے نا. جلد نکاح کو پروموٹ کرو گے کہ نہیں کرو؟ بچوں کی جلدی شادیاں کرو اس پہ اللہ پہ توکل کرو. 2 روٹی بہو آگے زیادہ ٹورنٹو میں رہ کے بھی کم وقتوں تم بہو کو نہیں کھلا سکتے تو کراچی اچھا نہیں ہے؟ کیا ضرورت ہے پھر یہاں آنے کی؟ ہم وہاں رہ کے وہاں کے عام متوسط طبقے کا آدمی 6 بچوں کو کھلا رہا ہے، بیگم کو کھلا رہا ہے. میں ایک مالٹے بیچنے والا ریڈی والے سے میں نے انٹرویو لیا. میں نے کہا یار تم ریڈی سے کن لوگوں کو کھلاتے ہو؟ خوشی خوشی بتا رہے ہیں اپنی بوڑھی ماں کو بھی رکھا ہے، میں نے اس کو بھی کھلاتا ہوں، بوڑھے باپ کو بھی رکھا ہے، اس کو بھی کھلاتا ہوں، اور پتہ نہیں 5-6 بچے تھے ان کو بھی کھلاتا ہوں، اور ایک طلاق یافتہ بہن ہے اس کو بھی کھلاتا ہوں. میرے بھائی دل بڑا ہو تو ٹماٹر بیچنے والا بھی 10 لوگوں کو کھلا سکتا ہے. دل چھوٹا ہو تو کروڑوں روپے کما کے بھی آپ یہی کہتے رہو گے کھانے کو نہیں مل رہا مجھے اور میرے خرچے پورے نہیں. اس لیے یہ اللہ کی لمٹ ہے، اس کو کراس کرنے کی کوشش مت کرو. شراب کے قریب نوجوان مت جائیں، ہمارے مذہب میں حلال نہیں ہے. نماز کی پابندی سب کو کرنی پڑے گی. مسجد میں آ کے گھر میں نماز ہوتی تو حی علی الصلاۃ کی صدائیں لگانے کا اللہ ہمیں حکم نہیں دیتا. رمضان کے سارے روزے رکھنے پڑیں گے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ کراچی میں جب ہیٹ اسٹروک تھا نا گرمیوں میں، کچھ لوگوں کے فون آتے، مفتی صاحب میں صبح دفتر جا رہا ہوں 10 بجے، ابھی میں نے نیت نہیں کی ہے. میں نے کیوں نیت نہیں کی؟ بھائی رمضان ہے. کہہ رہے میں ذرا ٹیمپریچر چیک کر کے رکھیں. بھائی آپشنل نہیں ہے، یہ ضروری ہے. یہ تو ایسے ہی ہوگی ایگزامینیشن ہال میں سوال آیا، آپ ایگزامینر کو بتاؤ یہ سوال کا جواب اگر آئے گا تو میں لکھوں گا، نہیں آئے گا تو یہ سوال ہی اڑا دوں. اس سے وہ پہلی پوچھو جس کا مجھے جواب آتا ہے. یہ تھوڑی ہوتا ہے. تو اس لیے عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور انسان کا بچہ بننے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. رشتے جوڑنے والا بنائے.